ओके सो लेट्स कूल ऑफ अ लिटिल बिट। अगर हमने अभी तो हमने कुछ कुछ नया पढ़ा, तो थोड़ा सा कुछ फेमिलियर चीज करते हैं। पता नहीं फेमिलियर है कि नहीं, लेट्स सी कि फेमिलियर है कि नहीं। सो क्वेश्चन है हमारा, अगेन हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि प्रूव दैट रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। So first of all, is this question familiar to you? Have you seen this question earlier? Yes, ma'am. Okay, what about Mudabir? Yes, ma'am. I have seen it. Okay, nice. So if you have seen this question, then you know what is a rational number, what is an irrational number. So you are familiar with real number system. That is really good. Yes. So now I think without a further delay, let's walk through the solution. Ishan, why don't you start? How can we prove that root 2 is not a rational number? Assume that root 2 is a rational number. Okay. Express it in so we can express it in P upon Q form. P by Q form. Great. Then Yes, ma'am. We can express it in P by Q form. So then I think will square it. we will square both sides. Yes. Then you are on a right track. So P square is equal to 2 times Q square. Yes. Which means that P square is a multiple of I don't remember exactly the steps after it. No issues. Think about it and of course recall सबसे पहला हमारा आई थिंक ब्रेन फंक्शन रिकॉल ही काम करता है। कोई बात नहीं, हमें रिकॉल ने इतना दे दिया, बहुत दे दिया। अब सोचो कि क्या होगा आगे, अगला स्टेप क्या होगा। अंटिल So मुदाबिर, हाँ can you say, मुदाबिर, ma'am? हाँ यस। When we express root 2 as P by Q, we try to say that P and Q should have highest common factor as 1. ओके Yes, 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 ma'am. Then HCF of P and Q should be 1. Then in the next step, we square it and we express 2 as P square by Q square. ओके Now P square and Q square are also integers. So we can write P square as ओके M and Q square as N. So 2 should be represented as M by N. एक मिनट। ओके सो आई थिंक आई गॉट यू टिल दिस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। इसके बाद क्या? In the last step, yeah, जहाँ आपने यहाँ हाँ लिखा है मैम कि P square equals to 2Q square, तो इससे हमें पता चलता है ये इंटीजर्स ही है ना, तो यस P ये मल्टीपल आ रहा है 2Q, Q का मल्टीपल बन रहा है वो Q स्क्वायर का, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे ही हम रुकेंगे एक मिनट। आप बोल रहे हो पी स्क्वायर इज 2Q स्क्वायर, तो ये हमें बोल रहा है कि पी क्यू का जीसीडी 1 नहीं है, ऐसा क्यों? 1 minute, ma'am. I will हाँ write it in my notebook and will turn my screen टेक on. योर टाइम, टेक योर टाइम। आई थिंक आई शुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम बिफोर आस्किंग दिस क्वेश्चन। टेक योर टाइम, डू दिस कैलकुलेशन इन योर notebook, and then we can discuss it. Let's wait for one minute at least. I think it will be that since the HCF of P and Q is 1, so same goes with the HCF of P square and Q square. Okay, you are saying that if PQ has GCD 1, then P square and Q square will have GCD 1. So But the last equation contradicts this. P square equal to 2 Q square, since the GCD is not 1. okay, so you are saying P square की जगह हम Q square 2Q square रख देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि इसका GCD तो एटलीस्ट तो Q square तो होगा ही, क्योंकि Q square दोनों में ही कॉमन है। बट ये जो आपने असर्शन किया है कि
पी क्यू का जीसीडी 1 है, देन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का भी जीसीडी 1 होगा। ये क्या असर्शन दोनों साइड से ट्रू है? दोनों साइड की इन्होंने बात करी नहीं है, इनको बस एक ही साइड का चाहिए कि पी क्यू का 1 है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का भी 1 है। हाँ हाँ, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, यस। सो कैन यू प्रूव दिस assertion? This assertion that PQ का GCD is 1, then P square Q square का GCD is also 1. Squaring a rational number should give us a rational number. So when we square it, 2 equals to p square by q square, we try to say that p square by q square should also have the highest common factor of 1. So could you just repeat it? I did not understand. You are trying to prove that PQ का GCD is 1 and you are saying that since P by Q is root 2. Yeah, we are assuming here that root 2 is a rational number. Squaring a Okay. rational number also gives us a rational number. So Yes. 2 should also be represented as the ratio, like p by q form. So p Okay. square by q square should also have GCD as 1. नहीं, अभी रुकते हैं। आपने ये बोला कि 2 is a rational number, so 2 will also be represented as m by n, right? But why Yes, ma'am. will it? So it will be some m by n. Why it will be p square by q square? Q square. If you are just thinking कि 2 एक rational number and all, and how that is giving you that GCD is 1, p square and q square का? Take 1 minute, think about it. एक हेल्प शायद हो इस चीज से कि हमारा जीसीडी से हम समझते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी? जीसीडी पी क्यू का जीसीडी और एचसीएफ 1 है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एम नॉट, अच्छा हाँ यूज कर सकते हैं एम एन एन, देयर एग्जिस्ट एम एन एन सच दैट एम पी प्लस एन क्यू इज इक्वल्स टू 1. अरे नहीं, ये तो आप थ्योरम पे चली गई, ये थोड़ी डीसीडी की डेफिनेशन ये थोड़ी होती है, ये तो नहीं बहुत नहीं, मुश्किल बात हो गई। जीसीडी जीसी की डेफिनेशन नहीं है आई थिंक, बट वी कैन ये राइट बात इट। सही है, दिस इज ट्रू, हाँ बट ये तो बहुत आगे की बात हो गई ना, जो हम सवाल कर रहे हैं उससे बहुत आगे की बात हो गई है। हाँ हाँ, ये तो मैं एक्चुअली ये इनको कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए थोड़ा सा ये बता हाँ, रही हूँ कि कैसे अरे आप पी सोच स्क्वायर और सकते क्यू हो। स्क्वायर का जीसीडी 1 करेंगे, पर हाँ, मतलब ये अच्छा अगर, आपको लग रहा है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है क्या? हाँ ये तो मतलब कैसे, ये तो सोचने में बड़ा मुश्किल है, कैसे कोई सोचे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं हटा देती हूँ। वैसे मतलब जीसीडी 1 होने का मतलब ये है कि देयर विल एग्जिस्ट 1 एम एन एन सच दैट वी कैन राइट एम पी क्यू प्लस एन क्यू, एम पी प्लस एन क्यू इक्वल्स टू 1। तो ये बात सही है कि अगर पी और क्यू का जीसीडी 1 है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का भी जीसीडी 1 है, पर ये एकदम स्पष्ट नहीं है यहाँ से कि क्यों ऐसा ट्रस्ट है, नहीं है। हाँ तो और हम ये यूज भी नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है प्रूव करने के लिए तो वही यूज करेंगे ना? मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, हाँ मतलब मेरे पास भी और कोई तरीका नहीं अनलेस है। यू डू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और समथिंग, बट उसके लिए भी यही यूज करना पड़ता है जो आपने लिखा, बट वो सब तो फिर नंबर थ्योरी वो हमने करा नहीं है डिस्कस। तो लेट्स ट्राई टू मे बी गिव देम द सॉल्यूशन दैट वी हैड इन माइंड। हाँ नहीं, लेकिन अगर वो कुछ कर पाए तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज अगर कर पाए तो ठीक है, मे बी। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना ये जरूरी क्यों है प्रूव करना कि पी क्यू का जीसीडी 1 है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का जीसीडी भी 1 होगा? अगर हम ये नहीं प्रूव करते हैं तब ये हम बोल रहे हैं ये सत्य है, लेकिन इसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना, अगर हम इस Yes, प्रूव ma'am. दे रहे हैं किसी थ्योरम का। हाँ, तो अगेन इट्स अ ग्रेट एफर्ट, सही सोल्यूशन आप दे रहे हो, लेकिन एक बीच में छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमको ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी आई एम नॉट श्योर। सिद्धार्थ, डू यू हैव एनी सोल्यूशन विच डज नॉट यूज दिस फैक्ट ऑफ? मैं एक चीज तो बोलना चाहता हूँ कि ये फैक्ट के बाद भी देर इज अ स्मॉल स्टेप विच इज सपोज टू बी डन एट द एंड ऑफ द प्रूफ कि आपने ये दिखाया 2q² और q² का जीसीडी q² तो होगा ही या उससे बड़ा ही होगा, बट q² से बड़ा हो नहीं सकता तो q² ही है। लेकिन उससे प्रूफ कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि q² कुड बी 1 which implies that q is 1. So then you have to observe that root 2 is not a natural number, which will finish the proof. यस एक्चुअली। और
पी क्यू अगर जीसीडी 1 रखते हैं तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जीसीडी 1 रखते हैं, शायद लोगों के लिए इंट्यूटिव इसलिए है क्योंकि वो प्राइम फैक्टर की तरह सोच रहे हैं पी और क्यू को। मुझे नहीं पता मतलब इंट्यूटिवली उनको ये क्यों सच लग रहा है, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस रीजन कि आप पी क्यू के प्राइम फैक्टर्स की तरह सोचें तो कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन तो आने नहीं वाले स्क्वायर करने से। हम्म तो यही रीजन हो सकता है जो इस कारण से लोग सोच रहे हैं ये बात। काफी इंट्यूटिव बात है, बट तो ये प्रूव करना आसान नहीं है। हाँ, प्रूव करना आसान नहीं है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम मान लें तो शायद आसान है, नहीं तो आसान नहीं है। और मतलब आप ये मान लें कि पी का एक प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ है, क्यू का एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आप अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको तुरंत ही पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे क्योंकि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ही मिल जाता है। तो फिर उसमें आप देख सकते हैं कि कोई कॉमन आने का स्कोप ही नहीं है। बट एनीवेज आई थिंक हम लोग हमारा प्रूफ बता देते हैं, बट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये वाला स्टेप आपको अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसे बोल देते हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जीसीडी 1 है क्योंकि पी बाई क्यू रूट 2 है, जैसे कि मैं देख रहा था ये यूज करने की कोशिश की जा रही थी कि पी बाई क्यू रूट 2 है इसलिए हम प्रूव करेंगे कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जीसीडी 1 है। लेकिन वो मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली कुछ गलत टाइप का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ये बात सही है लेकिन वो आर्ग्यूमेंट में ये शायद ही यूज हो पाएगा कि पी बाई क्यू रूट 2 है। मोस्ट लाइकली दैट इज नॉट समथिंग दैट इज यूजफुल टू शो द जीसीडी ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज 1। But in any case, the ideas are almost there, so we can present the. yes, yes, but great effort both of you guys. So I think I'm not going to write it down because I have already written it down. So just go through the solution. I think it's clear whatever written, but if any step is not clear, you can ask. I'll take a break of 2 minutes and I'll be back. Okay. So is the solution clear? Is every Yes, ma'am. step clear? ये समझ में आ रहा है Actually, कि I have some notes. हाँ, yes. In the third step, why are they directly assuming that m is an even number? Shouldn't m square be an even? Okay, let's see. Yes, ma'am. M Great square question. will be an even, so we can imply from that M is even. Yes, so how will you imply that, Ishan? M square is 2n square. तो हम कैसे बोलेंगे कि m even है? M square is even, so it's square root also must be even. Like I did it from some examples, like 4, 16 considered them. Because ma'am, Okay, so since हाँ, छोटे ma'am, they're एग्जाम्पल में even, दिख रहा है तो इसका मतलब है ट्रू तो है। हाँ, ma'am, you are they're on a even. Yes. सो स्क्वायर रूट से बेटर वे है ये देखने का कि देखो One second. So what have we just learned? We want to prove that m is even. So what have we just learned? We should assume that first m is not even, m is odd. Yes. Assume m is odd. Then what happens? Okay. yeah, this is also a way to do this. तो लिख दीजिए पुनः, m अगर odd है तो कैसा दिखेगा? 2k plus 1 दिखेगा? In explicit in form of 2k plus 1. राइट, अगर m ऑड होगा तो इट विल बी सम 2l plus 1. अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो इसका स्क्वायर कैसा दिखेगा? इट विल बी 4l स्क्वायर। मैं पूरा लिख दे रही हूँ लेकिन मैं लिख सकती थी कि 4l plus 1, which is again we can write 2 times something plus 1. Odd. So which is an odd number. So if m is even, m is odd, then m square has to be odd. So तब हमें कॉन्ट्रडिक्शन फिर से मिल जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन हम प्रूव कर रहे हैं, उसके एक स्टेप के बाद फिर से हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। So you can see the beauty of this principle. So is it clear for both of you now why m is even? Because m square is 2n square. And Yes, ma'am. Yes. इसको इस तरह भी देख सकते हो कि since 2 divides m square and 2 is a prime number, if some number divides m square, then 2 will divide m as well. बट ये भी पुनः उतनी मुश्किल बात है जो आपने थ्योरम लिखा था। हाँ, ये वैसी मतलब या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज कर रही हैं या फिर आपको वो सब करना पड़ेगा यूक्लिड्स थ्योरम वाला
राउट नहीं लेना नहीं, पड़ेगा। 2 के साथ तो बहुत इजी है ना, बिकॉज 2 के साथ रिमाइंडर अदर इधर 0 हाँ तो होगा। वही वो आर्ग्यूमेंट तो आप दिखा चुके हो, मतलब अगर आप प्राइम के लिए बोलते हो ये बात, एक आर्बिट्ररी प्राइम के लिए, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल, 2 के लिए तो इजी है। 2 के लिए तो आपने आर्ग्यू किया, अभी अभी वही आपने हाँ किया हाँ, है। ठीक। So now, good, m is an even number. Now can you see that this implies that n is an even number? Yes, ma'am. Ishan? Yes, ma'am. Cool. So now can we say that if both are even, then GCD has to be at least 2? और हमको Yes, contradiction ma'am. मिल गया. I think you should Yes, ask yes. them why it is an even number. Oh, okay. Okay, so Ishan, tell me why n is an even number. Ma'am, we may assume that since m square is even, we may assume it like in the form of some 2k. Okay. M square is M, 2k. sorry, since we know m is Okay, even, no, yes. we're Yeah, assuming m is equal to yes, 2k. yes. Then we're squaring both sides. Yes, we will put here, so it will give me 4k square is equals to 2n square. Now we see from here. Yes. Again, you will get this, that n square is 2 times k square. So it's, again, you are going to have the same thing, that n 2 divides n square. So 2 will divide n. So n is an even number. Okay, great. So ये proof, ये जो स्टेप्स हैं हमने पहले देखे हुए थे, क्योंकि अभी ईशान ने ही बोला, हमने ये सॉल्यूशन देखा हुआ है, कुछ कुछ रिकॉल किया, कुछ कुछ हमने सीखा। तो ये क्वेश्चन करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, क्योंकि आपको इसका सॉल्यूशन पहले से पता था, आपने पेपर्स में लिखा भी हो, शायद आया भी हो आपके एग्जाम में। नाउ व्हाट इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन? विद एवरी सॉल्यूशन वी वांट टू टेक अ टेक अवे, राइट? So what is a takeaway here? Just observe one fact. That's why I think I have used this different color for this particular box, because this is a crucial thing, that when we were proving this contradiction, when we were proving this result, we use this fact that GCD of m and n is 1. So ये कंडीशन जो हमने यूज की है, इस क्योंकि हमने ये सॉल्यूशन पहले से देखा हुआ था, तो शायद हमें लगा कि ये करना ही चाहिए, लेकिन रीजन क्या है इसको यूज करने का? व्हाई आर वी यूजिंग दिस? सो वन ऑफ द रीजन इज कि ये हमें एक मिनिमल फॉर्म दे रहा है, और जिससे हमें हमारा कॉन्ट्रडिक्शन भी मिल रहा है, क्योंकि अगर हम GCD 1 नहीं लेते हैं, सपोज D होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी m by n कर रहे हैं हम, तो वी कैन कैंसिल, अगर कोई भी इक्वल, कोई भी टर्म एक्स्ट्रा GCD मिल भी रहा है, नॉन 1 जो नहीं है, तो GCD एंड में मेरे को 1 मिल ही जाएगा, लेकिन ये एक काइंड ऑफ मिनिमल फॉर्म दे रहा है हमें m by n का, by taking GCD is equals to 1. Why I'm using this word minimal? Because it has this importance, that in some questions, or I think according to Siddharth, in every question we can look for some quantities which are minimal in some sense or maximal in some sense, and then we use that quantity to prove something. Either contradiction से भी कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या कोई चीज हम प्रूव कर रहे हैं, उसमें हम ये मिनिमल क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एक्सट्रीमैलिटी। एक्सट्रीम का मतलब होता है या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम, मिनिमैलिटी और मैक्सिमैलिटी दोनों को क्लब कर दो, एक्सट्रीमैलिटी। So this is our next topic, extremality principle. We will define it. We will do one question and we'll end this class today. So what is extremality? Just before that, I would like to say that in general, when you encounter a proof in textbooks or some other source, question every step of it. Don't assume that this is straightforward, because that often leads to a shallow understanding. मतलब उसमें आप कुछ चीजें मिस कर जाते हो कि क्यों ऐसी assumptions true हैं, ये कैसे आया. So it is very good and instructive to question every step of a proof. Like in the previous example, we saw that there were some assumptions or some hypotheses जो हमें intuitively बहुत true लग रहे थे, लेकिन जब हम उन्हें प्रूव करना चाहते हैं तो हमें तकलीफ होने लग रही थी. तो
It's just good to do this exercise with every proof. Yes. स्पेशली विद योर ओन आर्ग्यूमेंट्स। तो बुक में तो आर्ग्यूमेंट्स आपको पता है कि सही लिखे हैं, जो भी लिखा है वो किताब में छपा है तो मोस्ट लाइकली सही छपा है। बट जो खुद के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर आप ये करोगे तो ज्यादा परेशानी की बात हो जाती है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लॉजिकली बोल पा रहा हूँ या मैं बस इंट्यूटिवली बोल पा रहा हूँ। और बुक्स भी मोस्ट ऑफ डिपेंड द करता है टाइम कौन हमारा सी पढ़ रहे हैं। इंट्यूशन, यस, क्या? बोल रहा हूँ बुक्स में भी डिपेंड करता है कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं आप। तो हाँ हाँ, वो बिल्कुल। अन्य ये लोग कॉलेज के बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, इंट्यूशन से भी सही होती है चीजें, लेकिन आपको इंट्यूशन वो डेवलप करना पड़ेगा। आई थिंक वो आता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में आप प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आपको ये लगने लगेगा अच्छा हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इंट्यूशन भी काम करता है, लेकिन आफ्टर सम स्टेज, इनिशियली आप इंट्यूशन पे पूरी तरह से बेस्ड होकर काम नहीं कर सकते हो। इट कुड बी अ फर्स्ट, लाइक इट कैन पेव अ पाथ, बट यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस कि ये सही है कि नहीं, क्या इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लायक की चीज है कि ऐसे ही दिख रहा है। यू हैव टू लाइक रीथिंक। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर एक्सटर्नल प्रिंसिपल। सो इसका कोई थ्योरम या कोई स्टेटमेंट हैवी नहीं है, इट इज जस्ट वन काइंड ऑफ अ, यू कैन से अ ट्रिक, कि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो कुछ प्रूव करने के लिए या कुछ कैलकुलेट करने के लिए, so you see that problem, you try to figure out an element of the problem which are in